جلال الدین نصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہیں میڈیکل کالج میں ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں اسے یہ پتا چلا کہ وہ لوگ 4 بھائی بہن تھے۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد باپٹا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ کافی مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حد الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے۔ ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے اور ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی۔ زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں، آواز تو بہت اچھی ہے ان کی۔ قرأت تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں۔ ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب کی تھی۔ وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑھا کرتی تھی۔ 2-3 دن بعد امامہ جلال النصر کی نعت سننے کے لیے اپنے فرینڈز کو بتائے بغیر کلاس بینک کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی۔ جلال النصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیر نے جلال النصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سے شکل و صورت اور داڑھی والے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال النصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا۔ امامہ کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس کے بعد کس کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت ہال خالی ہو گیا، امامہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت دیر بعد اسے یکدم ہوش آیا تھا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ہال میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے۔ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اس موضوع پر بات کی۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اتنے قرأت اور نعتوں کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی ان کی تعداد یاد نہیں۔ زینب نے تفاخر سے کہا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ امامہ نے پھر کہا۔ ہاں، خوبصورت تو ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت جس کی کوئی حد نہیں۔ قرأت اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی اور چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان سے کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، مگر جیسی بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی، ہر ماہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی ہو، اگر ان سے تلاوت سن لو تو وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کے بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویریہ نے خاصی دیر کے بعد بھی اسے بستر سے برآمد نہ ہوتے دیکھ کر جھنجھوڑا۔ اٹھ جاؤ امامہ،
کالج نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ کیوں؟ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امامہ نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، رات کو سوئی نہیں تم؟ نہیں، نیند نہیں آئی، اور اب پلیز مجھے سونے دو۔ امامہ نے اسے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی، اور اس کی وجہ جلال النصر کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال النصر، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے کہ میں اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہی۔ اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا۔ وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی، آواز میں تاثیر اور عشق۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، سوز، گداس، لوچ، مٹھاس، آخر کیا تھا اس کی آواز میں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یکدم اسے اپنے ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا ہے؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پر درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے زیر لب پڑھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ اسے اپنی آواز پہ رائی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاید ابھی جاگی ہوں اس لیے آواز ایسی ہے۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا۔ وہ ایک بار پھر رک گئی۔ اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا۔ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی بہرائی آواز، کانپتے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال النصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یکدم وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے وہ بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی۔ جو فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں میں نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا۔ یہ جانے، یہ کھوجے، یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں؟ آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے؟ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے،
اس پر کبھی رقت طاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھنچتا چلا جاتا تھا، اور سبیہ کے پاس نہ جانے کے اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ جلال النصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنو کی طرح تھی، جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ میں تجھے عالم اشیاء میں بھی پا لیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہے عالم بالا تیرا۔ امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے سبیہ کے پاس جانے لگی، اور اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تو دوسری طرف اس کی باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب اسجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی، کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلامی شعار اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تحریفات کی جاتی تھیں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔ چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو کر رہ گئی تھی، اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ، تم فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اسجد سے شادی سے انکار کر سکتی ہو، بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ سبیہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اس سے مشورہ دیا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں، اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے بھی کچھ نہیں لینا پڑے گا۔ سبیہ نے اسے سمجھایا۔ سبیہ اگر یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب وہ سینما سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی۔ صاحب، کھانا لگا دوں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار
अब सीधा कारपेट पर गिरकर उसमें जज्ब हो रही थी। उसका जहन जैसे किसी गहरी खाई में जा रहा था। फिर उसने कुछ धमाके सुने। तारीकी में जाता हुआ जहन एक बार फिर झमाके के साथ रोशनी में आ गया। शोर अब बढ़ता जा रहा था। वो फौरी तौर पर शोर की वजह नहीं समझ पा रहा था। उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी, मगर वो किसी चीज को समझ नहीं पा रहा था। वो सो रही थी जब हड़बड़ाकर उठ बैठी। कोई उसका दरवाजा बजा रहा था। इमामा, इमामा। वसीम दरवाजा बजाते हुए बुलंद आवाज में उसका नाम पुकार रहा था। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? दरवाजा खोलते ही उसने कुछ हवास बाख्तगी के आलम में वसीम से पूछा, जिसका रंग उड़ा हुआ था। फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? वसीम ने उसे देखते ही फौरन पूछा। हाँ, क्यों? वो मजीद परेशान हुई। बस उसे लेकर मेरे साथ आ जाओ। वसीम ने कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या हुआ? उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगी। चूचू ने फिर खुदकुशी की कोशिश की है। अपनी कलाई काट ली है उसने। मुलाजिम आया हुआ है नीचे उसका। मेरे साथ चलो। इमामा ने बेइख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। तुम्हारे दोस्त को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए, जिस तरह की हरकत करता फिरता है। इमामा ने नागवारी से अपने बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। मैं तो इसे देखते ही भाग आया हूँ। अभी वो होश में था। उसने मुड़कर इमामा को बताया। वो दोनों अब उसके पीछे सीढ़ियां उतर रहे थे। तुम उसे हॉस्पिटल ले जाते? इमामा ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर कहा। वो भी ले जाऊंगा, पहले तुम उसकी कलाई वगैरह तो बांध दो, खून तो बंद हो। वसीम, मैं उसे कोई बहुत अच्छी किस्म की फर्स्ट एड नहीं दे सकती। पता नहीं उसने किस चीज से कलाई काटी है और जख्म कितना गहरा है। उसके अपने घर वाले कहाँ हैं? बात करते करते इमामा को ख्याल आया, उसके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मुलाजिम है। वो तो कोई फोन कॉल आई थी जिस पर मुलाजिम उसे बुलाने के लिए गया। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो परेशान होकर दूसरे मुलाजिमों के साथ मिलकर उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो दोनों साथ साथ चलते हुए अब अपने घर से निकल आए। तुम्हारा ये दोस्त जो है ना, इमामा ने कुछ नाराजगी के आलम में वसीम के साथ चलते हुए सालार के बारे में कुछ कहना चाहा, मगर वसीम ने गुस्से में पलटकर उसको झड़क दिया। फॉर गॉड सेक, अपनी लानत मलामत बंद नहीं कर सकते तुम? उसकी हालत सीरियस है और तुम उसकी बुराइयों में मसरूफ। ऐसी हरकतें करने वालों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी नहीं है। वो दोनों अब सालार के लाउंज में पहुंच चुके थे। चंद कदम चलने के बाद वसीम एक मोड़ मुड़ा और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इमामा उसके पीछे ही थी, मगर फिर जैसे करंट खाकर रुक गई। कमरे के दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही सामने कद आदम खिड़कियों पर कुछ मॉडल्स और एक्ट्रेसेस की बड़ी बड़ी उरिया तस्वीरें इस तरह लगाई गई थीं कि एक लम्हे के लिए इमामा को यूं लगा जैसे वो तमाम लड़कियां हकीकी तौर पर उस कमरे में मौजूद हैं। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। एक तरफ बेड पर पड़े हुए जख्मी के बारे में उसकी राय कुछ और खराब हो गई। वो तस्वीरें उसके किरदार की पस्ती का एक और सबूत थी, और कमरे में 3-4 लोगों की मौजूदगी में उसके लिए वो तस्वीरें खासी खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी का बाइस बन रही थीं। उन तस्वीरों से नजरें चुराते हुए वो तेजी से डबल बेड की तरफ आ गई, जहां सालार सिकंदर लेटा हुआ था। वसीम उसके पास बेड पर बैठा फर्स्ट एड बॉक्स खोल रहा था, जबकि इमामा का बड़ा भाई सालार की उस कलाई को बेड शीट के एक लटके हुए कोने के साथ दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि खुद सालार नशे में डूबे किसी इंसान की तरह अपना दायां हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो वसीम और वहां मुलाजिमों से कुछ कह भी रहा था। इमामा के आगे बढ़ते ही उसके बड़े भाई ने उस कुर्सी को छोड़ दिया जिस पर वो बैठे थे। उसके जख्म को देखो, मैंने चादर से खून रोकने की कोशिश की है, मगर मैं कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने उसकी कलाई इमामा को थमाते हुए कहा। इमामा ने कुर्सी पर बैठते ही उसकी कलाई के गिर्द लिपटा हुआ कोना हटाया। जख्म बहुत गहरा और लंबा था। एक नजर डालते ही उसे अंदाजा हो गया था। सालार ने फिर एक झटके के साथ अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर इमामा मजबूती से कलाई के कुछ नीचे से उसका बाजू पकड़े रही। वसीम, बस बैंडेज निकाल दो,
ये जख्म बहुत गहरा है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बैंडेज करने से खून रुक जाएगा, फिर तुम लोग इसे हॉस्पिटल ले जाओ। उसने एक नजर नीचे कारपेट पर जज्ब होते हुए खून पर डाली। वसीम तेजी से फर्स्ट एड बॉक्स में से बैंडेज निकालने लगा। सालार ने बेड पर लेटे लेटे अपने सर को झटका दिया और आंखें खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने अब धुंधलाहट सी थी, मगर उसके बावजूद उसने अपने बेड से कुछ फासले पर बैठी हुई उस लड़की और उसके हाथ में मौजूद अपने बाजू को देखा। कुछ मुश्तइल होकर उसने एक और झटके के साथ अपना हाथ उस लड़की के हाथ से आजाद करवाने की कोशिश की। हाथ आजाद नहीं हुआ, मगर दर्द की एक तेज लहर ने बेख्तियार करहाने पर मजबूर कर दिया था। उसे चंद लम्हों के लिए यही महसूस हुआ था जैसे उसकी जान निकल गई, मगर अगले ही लम्हे वो एक बार फिर हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग दफा हो जाओ, जाओ, कहाँ से आ गए हो? उसने कुछ मुश्तिल होकर लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। ये मेरा कमरा है, तुम लोगों को अंदर आने की जरूरत कैसे हुई? तुम वसीम, तुम दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट, जस्ट गेट लॉस्ट, ब्लडी बास्टर्ड, उसने बुलंद आवाज में मगर लड़खड़ाती जबान से कहा। इमामा ने उसके मुंह से निकलने वाली गाली को सुना। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे का रंग बदला, मगर वो फिर उसका हाथ मजबूती से पकड़े बैठी रही। उसने वसीम से कॉटन लेकर कराहते हुए सालार की कलाई के जख्म पर रख दी, जो हाथ को खींचने और हिलाने से बाज नहीं आ रहा था, और वसीम के हाथ से लेकर लपेटना शुरू कर दिया। सालार ने धुंधलाई आंखों के साथ अपनी कलाई के गिर्द किसी चीज की नरमी को महसूस किया। कुछ बेबसी और झुंझलाहट के आलम में सालार ने अपने बाएं हाथ के जोर से अपने दाएं हाथ को छुड़ाने की कोशिश की थी। धुंधलाई आंखों के साथ उसका आगे बढ़ने वाला बायां हाथ लड़की के सर से टकराया था। उसके सर से न सिर्फ दुपट्टा उतरा था, बल्कि उसके बाल भी खुल गए थे। इमामा ने हड़बड़ा कर उसे देखा, जो एक बार फिर अपना बायां हाथ आगे ला रहा था। इमामा ने अपने बाएं हाथ से उसकी कलाई को पकड़े रखा, जबकि दाएं हाथ में पकड़ी बैंडेज छोड़कर अपनी पूरी कुव्वत से अपना दायां हाथ उसके दाएं गाल पर दे मारा। थप्पड़ इतना जन्नाटेदार था कि एक लम्हे के लिए सालार की आंखों के सामने छाई हुई धुंध छट गई। खुले मोर आंखों के साथ दम बखुद उसने लड़की को देखा था, जो सुर्ख चेहरे के साथ बुलंद आवाज में उससे कह रही थी, अब अगर तुम हिले तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी काट दूंगी। सुना तुमने? सालार ने उस लड़की के अक़ब में वसीम को कुछ कहते सुना, मगर वो कुछ समझ नहीं पाया। उसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब रहा था, मगर उसने फिर एक आवाज सुनी, नस्मानी आवाज, इसका ब्लड प्रेशर चेक करो। सालार को बेइख्तियार चंद लम्हे पहले अपने गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ याद आया। वो चाहने के बावजूद आंखें नहीं खोल सका। वही नस्वानी आवाज एक बार फिर गूंजती थी, मगर इस बार वो उस आवाज को कोई मफहूम नहीं पहना सका। उसका जहन मुकम्मल तौर पर तारीकी में डूब गया था। अगली बार जब उसे होश आया तो वो एक प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद था। आंखें खोलकर उसने एक बार फिर अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। कमरे में उस वक्त एक नर्स मौजूद थी, जो उसके पास खड़ी ड्रिप को सही करने में मसरूफ थी। सालार ने उसे मुस्कुराते देखा था। वो उससे कुछ कहना चाह रहा था, मगर उसका जहन एक बार फिर तारीकी में डूब गया। दूसरी बार उसे कब होश आया उसे अंदाजा नहीं हुआ, मगर दूसरी बार आंखें खोलने पर उसने उस कमरे में कुछ शनासा चेहरे देखे थे। उसे आंखें खोलते देखकर मम्मी उसकी तरफ बढ़ाई थी। कैसा महसूस कर रहे हो तुम? उन्होंने उस पर झुकते हुए बेताबी से कहा। जस्ट फाइन, सालार ने दूर खड़े सिकंदर उस्मान को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। इससे पहले कि उसकी मम्मी कुछ और कहती, कमरे में मौजूद एक डॉक्टर आगे आ गया था। वो उसकी नब्ज चेक करने लगा था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने के बाद एक बार फिर उसे ड्रिप लगाई। सालार ने कुछ बेजारी के साथ ये कार्रवाइयां देखी। ड्रिप लगाने के बाद वो सिकंदर उस्मान और उसकी बीवी से बातें करने लगा। सालार उस गुफ्तगू के दौरान छत को घूरता रहा
फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से निकल गया। कमरे में अब बिल्कुल खामोशी थी। सिकंदर उस्मान और उसकी बेगम अपना सर पकड़े बैठे थे। उनकी तमाम कोशिशों और एहतियात के बावजूद ये सालार सिकंदर की खुदकुशी की चौथी कोशिश थी और इस बार वो वाकई मरते मरते बचा था। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर चंद मिनटों की ताखिर हो जाती तो वो उसे बचा नहीं सकते थे। सिकंदर और उनकी बीवी को मुलाजिम ने रात 2 बजे सालार की खुदकुशी की इस कोशिश के बारे में बताया था। वो दोनों मियाँ बीवी पूरी रात सो नहीं सके थे। सिकंदर उस्मान ने सुबह फ्लाइट मिलने तक तकरीबन 150 सिगरेट फूंक डाले थे, मगर उसके बावजूद उनकी बेचैनी और इस्तराब में कमी नहीं हो पा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता ये आखिर इस तरह की हरकतें क्यों करता है। आखिर इस पर हमारी नसीहतों और हमारे समझाने का असर क्यों नहीं हुआ। सिकंदर उस्मान ने दौरान सफर कहा, मेरा तो दिमाग फटने लगा है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। हर सहूलत, बेहतरीन तालीम, हत्ता के बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट को दिखा चुका हूँ, मगर नतीजा वही ढाक के 3 बात। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मुझसे क्या गलती हो गई है जो मुझे ये सजा मिल रही है। जानने वालों के दरमियान मजाक बन गया हूँ मैं इसकी वजह से। सिकंदर उस्मान बहुत परेशान थे। हर वक्त मेरा दम हलक में अटका रहता है कि पता नहीं वो किस वक्त क्या कर गुजरे। इतनी एहतियात बरतने का नतीजा ये निकला है कि एक बार हम गाफिल हुए और फिर वही हरकत कर गुजरा है। तैयबा ने अपनी आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं को टिश्यू के साथ साफ किया। वो दोनों उसी तरह की बातें करते हुए कराची से इस्लामाबाद आए थे, मगर सालार के सामने आकर दोनों को चुप लग गई थी। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस हालत में उससे क्या कहें। सालार को उनकी दिली और जहनी कैफियत का अच्छी तरह अंदाजा था और उनकी खामोशी को वो गनीमत जान रहा था। उन्होंने उस दिन उससे कुछ नहीं कहा था। अगले दिन भी वो दोनों खामोश ही रहे थे, मगर तीसरे दिन उन दोनों ने अपनी खामोशी तोड़ दी। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। सिकंदर ने उस रात बड़ी तहम्मुल मिजाजी से उसके साथ गुफ्तगू का आगाज किया था। आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है। तुमने वादा किया था कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। मैंने उसी वादे पर तुम्हें स्पोर्ट्स कार भी लेकर दी थी। हर बात मान रहे हैं हम लोग तुम्हारी, फिर भी तुम्हें कतन एहसास नहीं है हम लोगों का, ना खानदान की इज्जत का। सालार उसी तरह चुप बैठा रहा। किसी और का नहीं तो हम दोनों का ही ख्याल करो। तुम्हारी वजह से हमारी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तैयबा ने कहा, तुम्हें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे डिस्कस करो, हमसे कहो, मगर इस तरह मरने की कोशिश करना। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम इन कोशिशों में कामयाब हो जाते तो हमारा क्या होता। सालार खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बातों में कुछ भी नया नहीं था। खुदकुशी की हर कोशिश के बाद वो उनसे इसी तरह की बातें सुनता था। कुछ बोलो, चुप क्यों हो, कुछ समझ आ रहा है तुम्हें। तैयबा ने झुंझला कर कहा। वो उन्हें देखने लगा। माँ बाप को इस तरह जलील करके बड़ी खुशी मिलती है तुम्हें। इस कदर शानदार मुस्तकबिल है तुम्हारा और तुम अपनी अहमकाना हरकतों से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। लोग तरसते हैं इस तरह के एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए। सिकंदर उस्मान ने उसे उसका एकेडमिक रिकॉर्ड याद दिलाने की कोशिश की। सालार ने बेइख्तियार एक जमा ही ली। वो जानता था अब वो उसके बचपन से लेकर उसकी अब तक की कामयाबियों को दोहराना शुरू करेंगे। अगले 15 मिनट उस मौजू पर बोलने के बाद उन्होंने थक कर पूछा, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। बोलो। मैं क्या बोलूं, सब कुछ तो आप दोनों ने कह दिया। सालार ने कुछ उकताए हुए अंदाज में कहा, मेरी जिंदगी मेरा पर्सनल मामला है। फिर भी मैंने आपको बताया है कि दरअसल मैं मरने की कोशिश नहीं कर रहा था। सिकंदर ने उसकी बात काटी। तुम जो भी कर रहे थे वो मत करो, हम पर कुछ रहम खाओ। सालार ने नाराजी से बाप को देखा। तुम आखिर ये क्यों नहीं कह देते कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे। फजूल में क्यों बहस करते जा रहे हो। इस बार तैयबा ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा ऐसी कोई भी हरकत। सालार ने बेजारी से जैसे उन दोनों से जान छुड़ाने के लिए कहा। सिकंदर ने एक गहरी सांस ली। वो उसके वादे पर मुतमईन नहीं हुए थे, ना वो
نہ ان کی بیوی، مگر ایسے وعدے لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ بچپن سے اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے آ رہے تھے، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ان کا وہ فخر ختم ہو گیا تھا۔ جتنا پریشان انہیں سالار نے کیا تھا اتنا ان کے باقی بچوں نے مل کر بھی نہیں کیا تھا۔ اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ گئے تھے تم اس کی خیریت دریافت کرنے؟ امامہ وسیم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک اسے سالار کا خیال آیا۔ پہلے سے تو حالت کافی بہتر ہے اس کی، شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے۔ وسیم نے اسے سالار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تم چلو گی واپسی پر اس کو دیکھنے؟ وسیم کو اچانک خیال آیا۔ میں؟ امامہ حیران، میں کیا کروں گی جا کر؟ خیریت دریافت کرنا، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، امامہ نے تامل سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چلیں گے۔ حالانکہ اس طرح کے مریض کی عیادت کرنا فضول ہے، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے توقع تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے، شکریہ وغیرہ ادا کرنے کہ ہم نے ان کے بیٹے کی جان بچائی، کس قدر بر وقت مدد کی تھی ہم نے، مگر انہوں نے تو بھولے سے ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ امامہ نے تبصرہ کیا۔ تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ نہیں کر سکتی، کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئے، اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی تو وہ دونوں کیا جواب دیں گے؟ وہ بیچارے عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وسیم نے قدر افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ ویسے اس کے پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا، اور امی اور بابا پرسوں جب اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سالار کے بارے میں، ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا۔ وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ مگر آخر تمہارے اس دوست کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھے بیٹھائے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے وہ مجھے سب کچھ بتا کر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ مجھے کیا پتا وہ کس لیے کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے؟ تمہارا اتنا گہرا دوست ہے، تم پوچھتے کیوں نہیں اس سے؟ اتنا گہرا بھی نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں وہ مجھے بتانے لگے، اور ویسے بھی میں کیوں کرے دوں گا؟ ہوگا اس کا کوئی مسئلہ؟ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ تم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پر رہو، ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کل کو تم نے بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دی تو؟ ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی وہ اگر اسے یاد رہی تو ہماری دوستی میں خود ہی خاصا فرق آ جائے گا۔ وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسے وہ تھپڑ یاد ہوگا، صحیح طور پر ہوش میں تو نہیں تھا۔ تم نے ذکر کیا اس سے اس بارے میں؟ امامہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے کہا تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ اسے یاد ہو۔ تم نے اچھا نہیں کیا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، دوسرے گالیاں دے رہا تھا، اور اوپر سے میرا دوپٹہ بھی کھینچ لیا۔ اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، اس کا ہاتھ لگا تھا۔ وسیم نے سالار کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھا اس وقت تو مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا تھا، اور میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا۔ اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے تو بہت ہی پچھتاوا ہوتا اپنے اس تھپڑ کا۔ امامہ نے قدر معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لینا، وسیم نے مشورہ دیا۔ کیوں ایکسکیوز کروں؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، پھر میں خامخواہ گڑھے مردے اکھاڑوں، اسے یاد دلاؤں کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ امامہ نے فوراً کہا۔ اور فرض کرو اسے سب کچھ یاد ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ کون سا ہمارا رشتہ دار ہے کہ اسے تعلقات خراب ہو جائیں گے یا میل جول میں فرق پڑے گا؟ امامہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ شاپنگ کرنے کے بعد وسیم اسے کلینک لے آیا جہاں سالار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں جس وقت اس کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سالار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا تھا۔ اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا، مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی۔
बस वो जन्नाटेदार थप्पड़ याद था जो उस रात उसे पड़ा था। इसलिए इमामा को देखते ही वो सूप पीते पीते रुक गया। उसकी चुभती हुई नजरों से इमामा को अंदाजा हो गया कि उसे यकीनन उस रात होने वाले वाकयात किसी न किसी हद तक याद थे। रस्म अलैक सलैक के बाद उसकी मम्मी इमामा का शुक्रिया अदा करने लगी, जबकि सालार ने सूप पीते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। वसीम से उसकी दोस्ती को कई साल गुजर चुके थे और उसने वसीम के घर में इमामा को भी कई बार देखा था, मगर इससे पहले कभी तवज्जो नहीं दी थी। उस दिन पहली बार वो उस पर कदरे तनकीदी अंदाज में गौर कर रहा था। उसके दिल में इमामा के लिए तशक्कुर या एहसानमंदी के लिए कोई जज्बात नहीं थे। उसकी वजह से उसके सारे प्लान का बेड़ा गर्क हो गया था। इमामा उसकी मम्मी से गुफ्तगू में मसरूफ थी, मगर वो वक्तन फवक्तन अपने ऊपर पड़ने वाली उसकी नजरों से भी वाकिफ थी। जिंदगी में पहली बार उसे किसी की नजरें इतनी बुरी लगी थी। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा वो उठकर वहां से भाग जाए। सालार के बारे में उसकी राय और भी खराब हो गई थी। वो अपने उस थप्पड़ के लिए माजरत के इरादे से वहां आई थी, मगर उस वक्त उसका दिल चाहा उसे 2-4 और थप्पड़ लगा दे। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद फौरन ही वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई और वापस जाते हुए उसने सालार के साथ अलैक सलैक का तकल्लुफ भी नहीं किया था। वो सिर्फ उसकी मम्मी के साथ दुआ सलाम के बाद सालार की तरफ देखे बगैर बाहर निकल आई थी और बाहर आकर उसने सुकून का सांस लिया था। इस तरह के दोस्त बनाए हुए हैं तुमने, उसने बाहर निकलते ही वसीम से कहा, जिसने कुछ हैरानी से उसे देखा। क्यों, अब क्या हुआ? उसे देखने तक की तमीज नहीं है, इस बात का एहसास तक नहीं है कि मैं उसके दोस्त की बहन हूँ और उसके दोस्त के साथ उसके कमरे में मौजूद हूँ। वसीम उसकी बात पर कुछ खफीफ सा हो गया। यह आदमी इस काबिल नहीं कि इसकी अयादत के लिए जाया जाए और तुम इससे मेल जोल बंद कर दो। अच्छा ठीक है, मैं मोहतात रहूंगा, अब तुम बार बार इस बात को ना दोहराओ। वसीम ने मौजूद गुफ्तगू बदलने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा दानिस्ता तौर पर खामोश हो गई, मगर सालार उसके नापसंदीदा अफराद की लिस्ट में शामिल हो चुका था। एक इत्तेफाक ही था कि वो उन दिनों कुछ छुट्टियां गुजारने इस्लामाबाद आई हुई थी, वरना शायद सालार से उसका इतना करीबी और इतना नापसंदीदा तारुफ और ताल्लुक कभी पैदा ना होता। इस्लाम कबूल करने के बाद उसने पहली बार जलालुन नसर को तब करीब से देखा जब एक दिन वो चारों कॉलेज के लॉन में बैठी गुफ्तगू में मसरूफ थी। वो वहां किसी काम से आया। रस्मी से अलैक सलैक के बाद वो ज़ैनब के साथ चंद कदम दूर जाकर खड़ा हुआ था। इमामा उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। एक अजीब सी मुसर्रत और खुशी का एहसास उसे घेरे में ले रहा था। वो चंद मिनट ज़ैनब से बात करने के बाद वहीं से चला गया। इमामा उसकी पुश्त पर नजरें जमाए उस वक्त तक उसे देखती रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। उसके इर्द गिर्द बैठी उसके फ्रेंड्स क्या बातें कर रही थी, उसे उस वक्त उसका कोई एहसास नहीं था। जब वो उसकी नजरों से ओझल हुआ तो एकदम जैसे दोबारा अपने माहौल में वापस आ गई। जलालुन नसर से उसकी दूसरी मुलाकात ज़ैनब के घर पर हुई थी। उस दिन वो कॉलेज से वापसी पर ज़ैनब के साथ उसके घर आई थी। ज़ैनब कुछ दिनों से उन सबको अपने यहाँ आने के लिए कह रही थी। बाकी सब ने कोई ना कोई बहाना बना दिया था, मगर इमामा उस दिन उसके साथ उसके घर चली आई थी। उसके घर आकर उसे अजीब से सुकून का एहसास हुआ था। शायद उसकी वजह जलालुन नसर से उस घर की निस्बत थी। वो ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और ज़ैनब चाय तैयार करने के लिए किचन में गई थी। जब जलाल ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, इमामा को वहां देखकर कुछ चौंक सा गया। शायद उसे इमामा को वहां देखने की तवक्को नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जलाल ने शायद इस तरह बेधड़क अंदर दाखिल होने पर अपनी झेप मिटाने के लिए कहा। इमामा ने रंग बदलते चेहरे के साथ उसका जवाब दिया। ज़ैनब के साथ आई हैं आप? उसने पूछा। जी। ज़ैनब कहाँ है? मैं दरअसल उसको ढूंढते हुए यहाँ आ गया। मुझे पता नहीं था कि उसकी कोई दोस्त यहाँ मौजूद है। कुछ माजत खाना अंदाज में कहते हुए वो पलट गया। आप बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं।
इमामा ने बेसाख्ता कहा। वो ठटक कर रह गया। शुक्रिया। वो कुछ हैरान नजर आया। आपने कहा सुनी? एक दिन मैंने ज़ैनब को फोन किया था। जब तक फोन होल्ड रहा मुझे आपकी आवाज आती रही। फिर ज़ैनब से आपके बारे में पता चला। मैं उस नातिया मुकाबले में भी गई थी जहां आपने वो नात पढ़ी थी। वो बेख्तियार कहती चली गई। जलालुन नसर की समझ में नहीं आया वो हैरान हो या खुश। बहुत अच्छी तो नहीं, बस पढ़ लेता हूँ, अल्लाह का करम है। उसने हैरत के झटके से संभलते हुए सफेद चादर में लिपटी उस दुबली पतली दराज कामत लड़की को देखा, जिसकी गहरी सी आंखें कोई बहुत अजीब सा तासुर लिए हुए थी। अपनी आवाज की तारीफ वो बहुत सौ से सुन चुका था, मगर उस वक्त उस लड़की की तारीफ उसके लिए कदरे गैर मामूली थी, और जिस अंदाज में उसने ये कहा था वो उससे भी ज्यादा अजीब। वो पलटकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। वो वैसे भी लड़कियों से गुफ्तगू में महारत नहीं रखता था, और फिर एक ऐसी लड़की से गुफ्तगू जिससे वो सिर्फ चेहरे की हद तक वाकिफ था। इमामा एक अजीब सी मुसरत के आलम में वहां बैठी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने जलालुन नसर से बात की थी। अपने सामने खुद से इतने करीब। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे से कुछ आगे कारपेट पर उस जगह को देखती रही जहां वो कुछ देर पहले खड़ा था। तसव्वुर की आंख से वो उसे अभी भी वहीं देख रही थी। उनकी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में हुई। पिछली दफा अगर इमामा दानिस्ता तौर पर ज़ैनब के घर गई थी तो इस बार ये इत्तफाक था। इमामा राबिया के साथ वहां आई थी, जिसे वहां अपने किसी दोस्त से मिलना था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फाइनल स्टूडेंट्स के एक ग्रुप में उसने जलालुन नसर को देखा। उसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। कॉरिडोर में इतना रश था कि उसके पास नहीं जा सकती थी, और उस वक्त पहली बार इमामा को एहसास हुआ कि उसे सामने देखकर उनके लिए रुक जाना कितना मुश्किल था। राबिया के दोस्त के साथ बैठे हुए भी उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर बाहर ही था। 1-1.5 घंटे बाद वो राबिया के साथ उसकी दोस्त के कमरे से बाहर आई थी। अब वहां फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का वो ग्रुप नहीं था। इमामा को बेइख्तियार मायूसी हुई। राबिया उसके साथ बातें करते हुए बाहर निकल रही थी। जब सीढ़ियों पर उन दोनों का आमना सामना जलाल से हो गया, इमामा के जिस्म से जैसे एक करंट सा गुजर गया था। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? राबिया ने पहल की थी। अल्लाह का शुक्र है, उसने सलाम का जवाब देते हुए कहा। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? इस बार जलाल ने इमामा को देखते हुए पूछा। मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी और इमामा मेरे साथ आई थी, राबिया मुस्कुराते हुए बता रही थी, जबकि इमामा खामोशी से उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुई थी। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। उसकी आवाज सुनते हुए वो एक बार फिर ट्रांस में आ रही थी। उसने बहुत कम लोगों को इतने शुस्ता लहजे में उर्दू बोलते हुए सुना जिस लहजे में वो बात कर रहा था। पता नहीं क्यों हर बार उसकी आवाज सुनते ही उसके कानों में उसकी पड़ी हुई वो नात गूंजने लगती। उसे अजीब सा रश्क आ रहा था उसे देखते हुए। जलाल ने राबिया से बात करते हुए शायद उसकी महवियत को महसूस किया था, इसलिए बात करते करते उसने इमामा की तरफ देखा और मुस्कुराया। इमामा ने उसके चेहरे से नजरें हटा ली। बेइख्तियार उसका दिल चाहा था वो शख्स के और करीब चली जाए। जलाल से नजरें हटाकर इर्द गिर्द गुजरते लोगों को देखते हुए उसने 3 बार ला हौल पढ़ी। शायद उस वक्त शैतान मेरे दिल में आकर मुझे उसकी तरफ रागिब कर रहा है, उसने सोचा। मगर ला हौल पढ़ने के बाद भी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो भी जलाल के लिए वैसे ही कशिश महसूस कर रही थी। असजद से इतने सालों की मंगनी के बाद भी कभी उसने अपने आप को उसके लिए इस तरह बेइख्तियार होते नहीं देखा था जिस तरह वो उस वक्त हो रही थी। वहां खड़े उसे पहली बार जलाल से बहुत ज्यादा खौफ आया। मैं क्या करूंगी अगर मेरा दिल उस आदमी को देखकर उसी तरह बेइख्तियार होता रहा? आखिर उसे देखकर मुझे
اس نے جیسے بے بسی کے عالم میں سوچا، میں اتنی کمزور تو کبھی نہیں تھی کہ اس جیسے آدمی کو دیکھ کر اس طرح اس نے اپنے وجود کو موم کا پایا۔ بھائی آپ فارغ ہیں؟ اس رات زینب دروازے پر دستک دے کر جلال کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں آ جاؤ۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر زینب کو دیکھا۔ آپ سے ایک کام ہے۔ زینب اس کے پاس آتے ہوئے بولی۔ کیا کام ہے؟ آپ ایک کیسٹ میں اپنی آواز میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر دیں، زینب نے کہا۔ جلال نے حیرت سے اس کی فرمائش سنی۔ کس لیے؟ وہ میری دوست ہے امامہ، اس کو آپ کی آواز بہت پسند ہے، اس لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی اور میں نے حامی بھر لی، زینب نے تفصیل بتائی۔ جلال اس فرمائش پر مسکرایا۔ امامہ سے کچھ دن پہلے ہونے والی ملاقات اسے یاد آ گئی۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن یہاں آئی تھی؟ جلال نے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں وہی لڑکی ہے، اسلام آباد سے یہاں آئی ہے۔ اسلام آباد سے؟ ہاسٹل میں رہ رہی ہے؟ جلال نے کچھ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاسٹل میں رہ رہی ہے، کافی اچھا خاندان ہے اس کا، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اس کے فادر، مگر امامہ سے مل کر ذرا محسوس نہیں ہوتا۔ زینب نے بے اختیار امامہ کی تعریف کی۔ کافی مذہبی لگتی ہے، میں نے ایک دو بار تمہارے ساتھ کالج میں بھی دیکھا تھا، کالج میں بھی چادر اوڑھی ہوتی ہے اس نے۔ یہاں کالج کی آب و ہوا کا ابھی تک اثر نہیں ہوا اس پر، جلال نے کہا۔ بھائی اس کی فیملی بھی خاصی مذہبی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی ہے اسی طرح کی ہے۔ میرا خیال ہے کافی کنزرویٹو لوگ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کی فیملی خاصی تعلیم یافتہ ہے، نہ صرف بھائی بلکہ بہنیں بھی۔ یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے، زینب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کب ریکارڈ کر کے دیں گے؟ زینب نے پوچھا۔ تم کل لے لینا، میں ریکارڈ کر دوں گا، جلال نے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جلال کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا، پھر دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا جسے وہ پڑھ رہا تھا۔ ان کی اگلی ملاقات لائبریری میں ہوئی۔ اس بار امامہ اسے وہاں موجود دیکھ کر بے اختیار اس کی طرف چلی گئی۔ رسم الگ سلگ کے بعد امامہ نے کہا، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ جلال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے؟ اس کیسٹ کے لیے جو آپ نے ریکارڈ کر کے بھجوائی تھی، جلال مسکرایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی کوئی مجھ سے ایسی فرمائش کر سکتا ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں؟ کس حوالے سے؟ جلال نے ایک بار پھر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہر حوالے سے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے۔ وہ جلال کی بات پر عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ جلال کو شبہ ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ نمی نمودار ہوئی تھی، مگر وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اب باقی سب کچھ ہے، جلال نے مدھم آواز میں اسے کہتے سنا۔ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ آپ اتنی محبت سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ میں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال خاموشی سے اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولی، سب لوگوں کو تو اس طرح کی محبت نہیں ہوتی جیسی محبت آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہو بھی جائے تو ہر کوئی اس طرح محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کہ دوسرے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ سے بڑی محبت ہوگی۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی۔ شاید مجھے وہم ہوا تھا، جلال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ یہ میں نہیں جانتا، اگر ایسا ہو تو میں واقعی بہت خوش قسمت انسان ہوں۔ میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہر ایک کو اللہ اس محبت سے نہیں نوازتا۔ وہ بڑی رسانیت سے کہہ رہا تھا۔
इमामा उसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। उसे कभी किसी शख्स के सामने इस तरह एहसास कमतरी नहीं हुआ था जिस तरह का एहसास कमतरी वो जलालुन नसर के सामने महसूस करती थी। शायद मैं भी नात पढ़ लूं, शायद मैं भी बहुत अच्छी तरह उसे पढ़ लूं, मगर मैं जलालुन नसर कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं बन सकती। कभी मेरी आवाज सुनकर किसी का वो हाल नहीं हो सकता जो जलालुन नसर की आवाज सुनकर होता है। वो लाइब्रेरी से निकलते हुए मुसलसल मायूसी के आलम में सोच रही थी। जलालुन नसर से होने वाली चंद मुलाकातों के बाद इमामा ने पूरी कोशिश की थी कि वो दोबारा कभी उसका सामना ना करे, न उसके बारे में सोचे, ना ज़ैनब के घर जाए। हत्ता कि उसने ज़ैनब के साथ अपने ताल्लुकात को भी अपनी तरफ से बहुत महदूद करने की कोशिश की थी। उसकी हर हिफाजती तदबीर बुरे तरीके से नाकाम होती गई। हर गुजरते दिन के साथ इमामा की बेबसी में इजाफा होता जा रहा था और फिर उसने घुटने टेक दिए थे। उस आदमी में कोई चीज ऐसी है जिसके सामने मेरी हर मज़ाहमत दम तोड़ती जाती है, और शायद उसका ये एतराफ ही था जिसने उसे एक बार फिर जलाल की तरफ मुतवज्जो कर दिया था। पहले उसके लिए उसकी बेइख्तियारी लाशऊरी थी, फिर उसने शऊरी तौर पर जलाल को असद की जगह दे दी। आखिर क्या बुराई है अगर मैं उस शख्स का साथ चाहूं जिसकी आवाज मुझे बार बार अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटने पर मजबूर करती है। मैं क्यों उस शख्स के हुसूल की ख्वाहिश ना करूं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत रखता है। क्या मुज़ायक़ा है अगर मैं उस शख्स को अपना मुक़द्दर बनाए जाने की दुआ करूं जिसके लिए मैं उन्स रखती हूं और जिसके किरदार से मैं वाकिफ हूं। अगर मैं ये चाहूं कि मैं जलालुन नसर के नाम से शनाख्त पाऊं, उस वाहिद आदमी के नाम से जिसे सुनते जिसे देखते मुझे उस पर रश्क आता है। उसके पास हर दलील हर तौजी मौजूद थी। बहुत गैर महसूस तौर पर वो हर उस जगह जाने लगी जहां जलाल के पाए जाने का इम्कान होता, और वो अक्सर वहां पाया जाता। वो ज़ैनब को उस वक्त फोन करती जब जलाल घर पर होता, क्योंकि घर पर होते हुए फोन हमेशा वही रिसीव करता। दोनों के दरमियान छोटी मोटी गुफ्तगू रफ्ता रफ्ता तवील होने लगी। फिर वो मिलने लगे। जबीरिया, राबिया या ज़ैनब, तीनों को इमामा और जलाल के इन बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में पता नहीं था। जलाल अब हाउस जॉब कर रहा था। इमामा अक्सर उसके हॉस्पिटल जाने लगी। बाकायदा इजहार मोहब्बत ना करने के बावजूद वो दोनों अपने लिए एक दूसरे के जज्बात से वाकिफ थे। जलाल जानता था कि इमामा उसे पसंद करती थी और ये पसंदीदगी आम नौयत की नहीं थी। खुद इमामा भी ये जान चुकी थी कि जलाल उसके लिए कुछ खास किस्म के जज्बात महसूस करने लगा है। जलाल इस कदर मजहबी था कि उसने कभी इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। न सिर्फ ये कि वो मोहब्बत करेगा बल्कि इस तरह उससे मिला करेगा। मगर ये सब कुछ बहुत गैर महसूस अंदाज में होता गया। उसने कभी ज़ैनब से इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसके और इमामा के दरमियान किसी खास नौयत का ताल्लुक है। अगर वो ये इंकशाफ कर देता तो ज़ैनब उसे यकीनन इमामा की असद के साथ तयशुदा निस्बत से आगाह कर देती। बहुत शुरू में ही वो इमामा की ऐसी किसी निस्बत के बारे में जान लेता तो वो इमामा के बारे में बहुत मोहतात हो जाता। फिर कम से कम इमामा के लिए इस हद तक इन्वॉल्व होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जिस हद तक वो हो चुका था। उनके दरमियान होने वाली ऐसी ही एक मुलाकात में इमामा ने उसे प्रपोज किया था। उसे इमामा की जुर्रत पर कुछ हैरानी हुई थी, क्योंकि कम से कम वो खुद बहुत चाहने के बावजूद अभी ये बात नहीं कह सका था। आपका हाउस जॉब कुछ अरसे में मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? इमामा ने उस दिन उससे पूछा था। उसके बाद मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाऊंगा, जलाल ने बड़ी सहूलत से कहा। उसके बाद वापस आऊंगा और अपना हॉस्पिटल बनाऊंगा। आपने अपनी शादी के बारे में सोचा है? उसने अगला सवाल किया था। जलाल ने हैरान मुस्कुराहट के साथ उसे देखा था।
इमामा, शादी के बारे में हर एक ही सोचता है, आप किससे करेंगे ये तय करना भी बाकी है। इमामा चंद लम्हे खामोश रही। मुझसे शादी करेंगे? जलाल दम बखुद उसे देखने लगा। उसे इमामा से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। आपको मेरी बात बुरी लगी है? इमामा ने उसे गुमसुम देखकर पूछा। वो एकदम जैसे होश में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने बेइख्तियार कहा। ये सवाल मुझे तुमसे करना चाहिए था। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, इमामा ने बड़ी सहूलत से कहा। और आप? मैं हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हारे अलावा मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ। उसने अपने जुमले पर इमामा के चेहरे पर एक चमक आते देखी। मैं हाउस जॉब खत्म करने के बाद अपने माँ बाप को तुम्हारे यहाँ भेजूंगा। वो इस बार जवाब में कुछ कहने के बजाय चुप सी हो गई। जलाल, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शादी कर लूं? जलाल उसकी बात पर हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? हो सकता है मेरे पेरेंट्स इस शादी पर तैयार ना हो। क्या तुमने अपने पेरेंट्स से बात की है? नहीं। तो फिर तुम ये बात कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह जानती हूँ, उसने रसानियत से कहा। जलाल एकदम कुछ परेशान नजर आने लगा। इमामा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों की शादी पर कोई एतराज हो सकता है। मैं तो समझ रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मगर ऐसा हो सकता है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आप इस सूरत में मुझसे शादी कर लेंगे? जलाल कुछ देर खामोश बैठा रहा। इमामा इस तरह आपके आलम में उसे देखती रही। कुछ देर बाद जलाल ने अपनी खामोशी को तोड़ा। हाँ, मैं तब भी तुमसे ही शादी करूंगा। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं कि मैं अब किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएं, लेकिन अगर वो नहीं होते तो फिर हमें उनकी मर्जी के बगैर शादी करनी होगी। क्या आपके पेरेंट्स इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? हाँ, मैं उन्हें मना लूंगा। वो मेरी बात नहीं टालते, जलाल ने फखरी अंदाज में कहा। वो हल्की आवाज पर पलटी। उससे चंद कदम के फासले पर सालार खड़ा था। वो अपने उसी बेढंगी हुलिये में था। टी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे और वो खुद जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। एक लम्हे के लिए इमामा की समझ में नहीं आया कि वो किस तरह के रद्द अमल का इजहार करे। सालार के साथ तैमूर भी था। आओ, उस लड़के से मिलवाता हूँ तुम्हें। सालार ने इमामा को किताबों की दुकान पर देखा तो करीब चला आया। तैमूर ने गर्दन मोड़कर देखा और हैरानी से कहा, उस चादर वाली से? हाँ। सालार ने कदम बढ़ाए। ये कौन है? तैमूर ने पूछा। ये वसीम की बहन है, सालार ने कहा। वसीम की? मगर तुम इससे क्यों मिल रहे हो? वसीम और उसकी फैमिली तो खासी कंजर्वेटिव है, इससे मिलकर क्या करोगे? तैमूर ने इमामा पर दूर से एक नजर डालते हुए कहा। पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, पहले भी मिल चुका हूँ, बात करने में क्या हर्ज है? सालार ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। इमामा ने मैगजीन हाथ में पकड़े पकड़े एक नजर सालार को और एक नजर उसके साथ खड़े लड़के को देखा जो तकरीबन सालार जैसे हुलिये में ही था। हाउ आर यू? सालार ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देख कर कहा। फाइन। इमामा ने मैगजीन बंद करते हुए उसे देखा। ये तैमूर है, वसीम से इसकी भी खासी दोस्ती है, सालार ने तारुफ कराया। इमामा ने एक नजर तैमूर को देखा, फिर हाथ के इशारे से शॉपिंग सेंटर के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वसीम वहां है। सालार ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा जिस तरफ उसने इशारा किया था और फिर कहा, मगर हम वसीम से मिलने तो नहीं आए। तो? इमामा ने संजीदगी से कहा, आपसे बात करने आए हैं। मगर मैं तो आपको नहीं जानती, फिर आप मुझसे क्या बात करने आए हैं? इमामा ने सर्द बहरी से कहा। उसे सालार की आंखों से वहशत होने लगी थी। काश ये किसी से नजर झुकाकर बात करना सीख लेता, खास तौर पर किसी लड़की से। उसने मैगजीन दोबारा खोल लिया। आप मुझे नहीं जानती? सालार मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। आपके घर के साथ ही मेरा घर है, यकीनन है, मगर आपको जाती तौर पर नहीं जानती। उसने उसी रुखाई से मैगजीन पर नजरें जमाए हुए कहा।
चंद माह पहले आपने एक रात मेरी जान बचाई थी। सालार ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसे याद दिलाया। मेडिकल के स्टूडेंट होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज था। मेरे सामने कोई भी मर रहा हो, मैं यही करती। अब मुझे एक्सक्यूज करें, मैं कुछ मसरूफ हूँ। सालार उसके कहने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। तैमूर ने उसके बाजू को हौले से खींचकर चलने का इशारा किया। शायद उसे वसीम के हवाले से इमामा का लिहाज था, मगर सालार ने अपना बाजू छुड़ा लिया। मैं उस रात आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता था, हालांकि आपने मुझे प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया था। इस बार सालार ने संजीदगी से कहा। इमामा ने उसकी बात पर मैगजीन से नजरें हटाकर उसे देखा। आपका इशारा अगर उस थप्पड़ की तरफ है तो हाँ, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं था और मैं उसके लिए माजरत करती हूँ। मैंने उसे माइंड नहीं किया, मेरा इशारा उस तरफ नहीं था। सालार ने लापरवाही से कहा। मुझे तवक्को थी कि आप उस थप्पड़ को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के मुस्तहिक थे, एक नहीं 10। उसने जुमले का आधा हिस्सा जब्त कर लिया। वैसे आपका इशारा किस तरफ था? बेहद थर्ड क्लास तरीके से बैंडेज की थी आपने मेरी, और आपको प्रॉपर तरीके से ब्लड प्रेशर चेक करना नहीं आता। सालार ने लापरवाही से कहते हुए च्युइंगम की एक स्टिक अपने मुंह में डाली। इमामा के कान की लोएं सुर्ख हो गई। वो पलकें झपकाए बगैर उसे देखती रही। अफसोसनाक बात है कि एक डॉक्टर को ऐसे मामूली काम नहीं आते हों जो किसी भी आम आदमी को आते हैं। इस बार उसका अंदाज फिर मजाक उड़ाने वाला था। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेडिकल के इब्तिदाई सालों में हूँ, पहली बात। और जहां तक अनप्रोफेशनल होने का ताल्लुक है तो अगली बार सही। आपने तो अभी इस तरह की कई कोशिशें करनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आप पर प्रैक्टिस करके अपना हाथ साफ कर लूंगी। एक लम्हे के लिए कुछ नहीं बोल सका, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, यूं जैसे वो उसकी बात पर महसूस हुआ था, मगर शर्मिंदा नहीं। उसने उसका इजहार भी कर दिया। अगर आप मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हैं तो आप इसमें नाकाम होंगी। मैं जानती हूँ आप शर्मिंदा नहीं होते, ये सिर्फ इंसानों में होती है। इमामा ने उसकी बात काट दी। आपके ख्याल में मैं क्या हूँ? सालार ने उसी अंदाज में कहा। पता नहीं, एक वेट इस बारे में आपको ज्यादा बेहतर गाइड कर सकेगा। वो इस बार उसकी बात पर हंसा। 2 पैरों पर चलने वाले जानवर को हर मेडिकल डिक्शनरी इंसान कहती है, और मैं 2 पैरों पर चलता हूँ। रीछ से लेकर कुत्ते तक हर 4 पैरों वाला जानवर 2 पैरों पर चल सकता है, अगर उसे जरूरत पड़े या उसका दिल चाहे तो। मगर मेरे 4 पैर नहीं, और फिर मैं जरूरत के वक्त नहीं, हर वक्त ही 2 पैरों पर चलता हूँ। सालार ने अजीब अंदाज में अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। यह आपकी खुशकिस्मती है कि आपके 4 पैर नहीं है, इसलिए मैंने आपको वेट से मिलने को कहा। वो आपको आपकी खुसूसियत के बारे में सही बताएगा। इमामा ने सर्द आवाज में कहा। वो उसे जिच करने में वाकई कामयाब हो चुका था। वैसे जितनी अच्छी तरह से आप जानवरों के बारे में जानती हैं, आप एक बहुत अच्छी वेट साबित हो सकती हैं। आपके इल्म से खासा मुतासिर हुआ हूं मैं। इमामा के चेहरे की सुर्खी में कुछ और इजाफा हो गया। अगर आप मेरी वेट बन जाएं, तो मैं आपके बताए हुए मशवरे के मुताबिक आप ही के पास आया करूंगा, ताकि आप मेरे बारे में रिसर्च करके मुझे बता सकें। सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी, सिर्फ उसे देख कर रह गई। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही मुंह फट था, और ऐसे शख्स के साथ लंबी गुफ्तगू करना आबैल मुझे मार के मुतरादिफ था, और वो ये हिमाकत कर चुकी थी। वैसे आप क्या फीस चार्ज करेंगी? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। ये वसीम बता देगा। इमामा ने इस बार उसे धमकाने की कोशिश की। चले ठीक है, मैं वसीम से पूछ लूंगा। इस तरह तो खासी आसानी हो जाएगी। वो उसकी धमकी को समझने के बावजूद मरऊब नहीं हुआ, और उसने इमामा को ये जता भी दिया। तैमूर ने एक बार फिर उसका बाजू पकड़ लिया। आओ सालार चलते हैं, मुझे एक जरूरी काम याद आ रहा है। उसने उजलत के आलम में सालार को अपने साथ तकरीबन घसीटने की कोशिश की, मगर सालार ने तवज्जो नहीं दी। चलते हैं यार, इस तरह खींचो तो मत। वो इस तरह कहते हुए एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जे हो गया।
बहरहाल ये सब मजाक था। मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करने आया था। आपने और वसीम ने काफी मदद की मेरी। गुड बाय, वो कहते हुए वापस मुड़ गया। इमामा ने बेइख्तियार एक सुकून का सांस लिया। वो शख्स वाकई क्रैक था। उसे हैरत हो रही थी कि वसीम जैसा शख्स कैसे उस आदमी के साथ दोस्ती रख सकता है। वो एक बार फिर मैगजीन के वर्क को उलटने लगी। सालार आया था तुम्हारे पास? वसीम ने उसके पास आकर पूछा। दूर से सालार और तैमूर को देख लिया था। हाँ, इमामा ने एक नजर उसे देखा और एक बार फिर मैगजीन देखने लगी। क्या कह रहा था? वसीम ने कुछ तजस्सुस से पूछा। मुझे हैरत होती है कि तुमने उस जैसे शख्स के साथ दोस्ती कैसे कर ली। मैंने जिंदगी में इससे ज्यादा बेहुदा और बदतमीज लड़का नहीं देखा। इमामा ने उखड़े हुए लहजे में कहा। मेरा शुक्रिया अदा कर रहा था और साथ मुझसे कह रहा था कि मुझे बैंडेज तक ठीक से करनी नहीं आती, ना मैं ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ। वसीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसको दफा करो, ये अक्ल से पैदल है। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मुझे 2 हाथ और लगाऊं, उसके होश ठिकाने आ जाए। मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर पहुंच गया यहाँ। भाई, किसने कहा है तुमसे शुक्रिया अदा करने को? और मुझे तो वो दूसरा लड़का भी खासा बुरा लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारे उसके साथ भी दोस्ती है। इमामा को अचानक याद आया। दोस्ती तो नहीं, बस जान पहचान है। वसीम ने वजाहत पेश की। तुम्हें ऐसे लड़कों के साथ जान पहचान रखने की भी जरूरत नहीं है। बोलिया, देखा था तुमने उन दोनों का? न उन्हें बात करने की तमीज है, न लिबास पहनने का सलीका, और मुंह उठाकर शुक्रिया अदा करने आ गए। बहरहाल तुम उससे मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक कर लो। कोई जरूरत नहीं इस तरह के लड़कों से जान पहचान की भी तुम्हें। इमामा ने मैगजीन रखते हुए एक बार फिर उसे तंबीह की और फिर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। वसीम भी उसके साथ चलने लगा। मगर मैं एक बात पर हैरान हूँ, ये जिस हालत में था उसे कैसे याद है कि मैंने उसकी बैंडेज अच्छी नहीं की थी या ब्लड प्रेशर लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं ये समझ रही थी कि ये ऐसे ही हाथ पांव झटक रहा है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि ये अपने इर्द गिर्द होने वाली चीजों को भी ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे बैंडेज वाकई खराब की थी तुमने, और अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेना भी तुम्हें नहीं आती। कम से कम इस बारे में जो भी कह रहा था ठीक कह रहा था। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है, इमामा ने इतराफ करने के अंदाज में कहा। मगर मैं उस वक्त बहुत नर्वस थी। मैं पहली बार इस तरह की सूरत हाल का शिकार हुई थी। फिर उसके हाथ से निकलने वाला खून मुझे और खौफजदा कर रहा था, और ऊपर से उसका रवैया। किसी खुदकुशी करने वाले इंसान को इस तरह की हरकतें करते नहीं देखा था मैंने। और तुम डॉक्टर बनने जा रही हो, वो भी काबिल और नामवर डॉक्टर, नाकाबिले यकीन। वसीम ने तबसरा किया। अब कम से कम तुम इस तरह की बातें ना करो। इमामा ने एहतजाज किया। मैंने इसलिए तुम्हें ये सब नहीं बताया कि तुम मजाक उड़ाओ। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंच गए थे। कुछ दिनों से वो जलाल और ज़ैनब के रवैये में अजीब सी तब्दीली देख रही थी। वो दोनों उससे बहुत उखड़े उखड़े रहने लगे थे। एक अजीब सा तनाव था जो वो अपने और उनके दरमियान महसूस कर रही थी। उसने 1-2 बार जलाल को हॉस्पिटल फोन किया, मगर हर बार उसे यही जवाब मिलता कि वो मसरूफ है। वो ज़ैनब को अगर कॉलेज से लेने भी आता तो पहले की तरह उससे नहीं मिलता था। अगर मिलता भी तो सिर्फ रस्मी अलग सलग के बाद वापस चला जाता। वो शुरू में उस तब्दीली को अपना बहन समझती रही, मगर फिर ज्यादा परेशान होने पर वो एक दिन जलाल के हॉस्पिटल चली आई। जलाल का रवैया बेहद सर्द था। इमामा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। काफी दिन हो गए थे हमें मिले हुए, इसलिए मैं खुद चली आई। इमामा ने अपने सारे अंदेशों को झटकने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी तो शिफ्ट शुरू हो रही है। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। ज़ैनब बता रही थी कि इस वक्त आपकी शिफ्ट खत्म होती है, मैं इसीलिए इस वक्त आई हूँ। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने कहा, हाँ सही है, मगर आज मेरी कोई और मसरूफियत है। मैं उसका मुंह देख कर रह गई। जलाल, आप किसी वजह से मुझसे नाराज हैं? एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ।
जलाल ने उसी रूखाई से कहा कि आप 10 मिनट बाहर आकर मेरी बात सुन सकते हैं। जलाल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने अपना ओवरऑल अपने बाजू पर डाल लिया और कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल आया। बाहर जाते ही जलाल ने अपने रिस्ट वॉच पर एक नजर दौड़ाई। ये शायद उसके लिए बात शुरू करने का इशारा था। आप मेरे साथ इस तरह मिसबिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या मिसबिहेव कर रहा हूं? जलाल ने अक्खड़ अंदाज में कहा, आप बहुत दिनों से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, कर रहा हूं। इमामा को तवक्को नहीं थी कि वो इतनी सफाई से इस बात का एतराफ करेगा, क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सकी। क्यों? ये बताना जरूरी नहीं, उसने उसी तरह अक्खड़ अंदाज में कहा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका रवैया एकदम क्यों तब्दील हो गया है। कोई ना कोई वजह तो होगी इसकी। इमामा ने कहा, हाँ वजह है, मगर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम बहुत सी बातें मुझे बताना जरूरी नहीं समझती। मैं वो उसका मुंह देखने लगी। मैंने कौन सी बातें आपको नहीं बताई? ये कि तुम मुसलमान नहीं हो। जलाल ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। इमामा सांस तक नहीं ले सकी। क्या तुमने ये बात मुझसे छुपाई नहीं? जलाल, मैं बताना चाहती थी। इमामा ने शिकस्त खोर्दा अंदाज में कहा। चाहती थी मगर तुमने बताया तो नहीं। धोखा देने की कोशिश की तुमने। जलाल, मैंने आपको धोखा देने की कोशिश नहीं की। इमामा ने जैसे एहतिजाज किया। मैं आपको धोखा क्यों दूंगी? मगर तुमने किया यही है। जलाल ने सर झटकते हुए कहा। जलाल ने उसकी बात काट दी। तुमने जानबूझकर मुझे ट्रैप किया। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। ट्रैप किया? उसने ज़ेरे लब जलाल के लफ्जों को दोहराया। तुम जानती थी कि मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता हूँ। वो शिकस्त खोरदा अंदाज में उसे देखती रही। शादी तो दूर की बात है, अब जब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ तो मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम दोबारा मुझे मिलने की कोशिश मत करना। जलाल ने दो टोक अंदाज में कहा। जलाल, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, उसने मध्यम आवाज में कहा। ओह कम ऑन। जलाल ने तहकीर आमेज अंदाज में अपना हाथ झटका। यहाँ खड़े खड़े तुमने मेरे लिए इस्लाम कबूल कर लिया। इस बार वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। जलाल, मैं आपके लिए मुस्लिम नहीं हुई, आप मेरे लिए एक जरिया जरूर बने हैं। मुझे कई माह हो गए इस्लाम कबूल किए, और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। आप मेरे साथ चलें। इस बार जलाल कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देखने लगा। मैं मानती हूँ मैंने आपकी तरफ पेशकदमी खुद की। आपके बकौल मैंने आपको ट्रैप किया। मैंने ट्रैप नहीं किया, मैं सिर्फ बेबस थी आपके मामले में। मुझे खुद पर काबू नहीं रहता था, आपकी आवाज की वजह से। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, पहली बार आपको नात पढ़ते सुना तो मैंने क्या महसूस किया था। आपको अगर मेरे बारे में पहले ही ये सब कुछ पता चल जाता तो आप मेरे साथ यही सलूक करते जो आप कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इस बात का अंदेशा था जिसकी वजह से मैंने आपसे बहुत कुछ छुपाए रखा था। बाज बातों में इंसान को अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता। मुझे भी आपके मुआवले में खुद पर कोई इख्तियार नहीं होता। उसने रंजीदगी से कहा। तुम्हारे घर वालों को इस बात का पता है? नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती। मेरी मंगनी हो चुकी है। मैंने आपको इस बारे में भी नहीं बताया। वो एक लम्हे के लिए रुकी। मगर मैं वहां शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल होने का इंतजार कर रही हूँ। तब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी और फिर मैं आपसे शादी करूंगी। 4-5 साल बाद जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो शायद मेरे पेरेंट्स आपसे मेरी शादी पर इस तरह एतराज ना करें जिस तरह वो अब करेंगे। अगर मुझे ये खौफ ना हो कि वो मेरी तालीम खत्म करवा कर मेरी शादी अशद से कर देंगे तो शायद मैं उन्हें इस बात के बारे में बता देती कि मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। मगर मैं अभी पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट हूँ। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। आप वो वाहिद रास्ता थे जो मुझे नजर आया। मुझे वाकई आपसे मोहब्बत है। फिर मैं आपको शादी की पेशकश ना करती तो और क्या करती। आप इस सूरत हाल का अंदाजा नहीं कर सकते जिसका सामना मैं कर रही हूँ। मेरी जगह पर होते
تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب مزید پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پوچھ لی، کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہیں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا، امامہ بیٹھ جاؤ، پورا پینڈورا باکس کھل گیا ہے میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ امامہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں، تم اب نہیں ہو، مگر پہلے تو تھی، اور پھر تمہارا خاندان۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموش رہے۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا، یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرضی کام کرنے کا سوچ بھی لوں تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں، چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے۔ امامہ نے کہا، میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ 3-4 سال اپنی اسٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے۔ جلال نے اسے یاد دلایا۔ پھر امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت ہو، شاید میں کوئی راستہ نکال سکوں۔ تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر میں اپنا کیریئر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے، اور وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، وہ میری بات مانیں گے یا نہیں۔ میں امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی۔ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی توقع ہوتی تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی، نہ ہی آپ سے اس طرح کی مدد مانگ رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کے لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے، سمجھانے میں کچھ وقت لگے گا، مگر میں تمہاری مدد کروں گا، میں انہیں منا لوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، وہ پرسوچ مگر الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو عجیب سی ڈھارس ہوئی، اسے جلال سے یہی توقع تھی۔ امامہ نے سوچا، میرا انتخاب غلط نہیں ہے،